सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर spherical lens. Okay, spherical lens means both the lens, convex lens and concave lens, दोनों लेंस के लिए साइन कन्वेंशन फॉर spherical lenses. Spherical lenses means the convex lens and concave lens both. Okay, so you just have to remember two things. First thing is that all the distances taken from ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि ऑल द डिस्टेंसेस टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से आपको सारी डिस्टेंसेस लेनी है। और सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखना है, सेकंड थिंग इज दैट ऑल द डिस्टेंसेस in the direction of incident light ray. Okay, incident light ray taken positive. ठीक है, only you have to remember these 2 points for the sign convention for spherical lens. First thing is all the distances are taken from the optical center. जो भी डिस्टेंस आप लोगे वो कहाँ से लेनी है, आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेनी है। एंड सेकंड पॉइंट इज ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे टेकन पॉजिटिव। इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आप लोगे, दैट डिस्टेंस वी विल टेक एज अ positive. Okay, so now one by one we will see both for both the lenses, convex lens and concave lens. एक एक करके दोनों के लिए देख लेते हैं। जैसे let's see for the convex lens, let's draw any case for the convex lens. convex lens के लिए कोई एक केस ड्रॉ करते हैं अपन। ये देखो आप, so this is a convex lens. Let's mark it as optical center. Okay, then this one is f2, this one is 2f2, and here let's take this one is f1 and this one is 2f1. Okay, let's put a image at 2f1. 2f1 पे अपन एक इमेज, ऐसे एक रे डायग्राम बना लेते हैं। जैसे 2f1 पर अपन इमेज ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। तो 2f1 पे ऑब्जेक्ट प्लेस करा, ऑब्जेक्ट को कर देते हैं ए बी। ओके, ए बी ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। देन वी रिक्वायर्ड ओनली 2 rays to form the image. So let's take this first incident ray. So this one is a first incident ray. It is coming parallel to the principal axis. So after refraction from lens, okay, refraction from lens, it will go from the focus. तो इस तरह से focus से pass कर देंगे इसको. So this is a refracted ray, first refracted ray. Okay. Now let's mark this point also here. Okay. Now let's draw the second incident ray. So let's see. This is the second incident ray. Now it will go past optical center undeviated. Okay, it will go past optical center undeviated, कुछ इस तरीके से. So this is the point where they both the refracted rays intersects. So we will get image here. So this is our image. Okay, this is a image. Image को mark कर देते हैं A dash B dash. Okay, so this is a ray diagram when a object is placed at 2f1. So image will form at 2f2. Okay, you know that what is the position of image. Position of image is at 2f2. What is the size of image? Image size of image is same as the size of object. Okay, and the nature of image is what? Real and inverted. है ना? अभी हम Inverted. देखने हैं साइन कन्वेंशन. सो फर्स्ट साइन कन्वेंशन लेते हैं अपन. फर्स्ट जो क्वांटिटी ले रहे हैं अपन, दिस डिस्टेंस O2 F2. ठीक है, O से लेके F2. सो व्हाट इज OF2?
OF2 is a Focal length. Focal length. Focal length. very good. OF2 is a focal length, very good. So now question is, this focal length will be positive or negative? So we take all the distances from O. Okay. Positive. Now when you go from O It to will be F2, positive. okay, so when you go O to F2, you will go in the direction of the incident light ray. So we taken this focal length as positive. So focal length of the convex lens will be positive. This one is plus F. Okay. Now let's see second point. Second point is the distance of object. This distance of object. So distance of object is OB. Okay. So OB is, we denote, what is the OB? OB is a distance of object. Okay, distance of object from ऑप्टिकल सेंटर. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं अपन? यू से. ओके, सो वी डिनोट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय यू. नाउ क्वेश्चन इज दैट वी टेक दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो विच साइन? Negative. Negative. Okay, so Negative. this object distance is minus u. Why it is minus u? Because our light ray is Because not in the direction of incident light. Not in the direction of this incident ray. because this distance O to B is opposite to the direction of incident light ray. This is the direction of incident light ray. तो जब आप O से B की तरफ जाओगे तो अपोजिट जाओगे, इसलिए माइनस का साइन आएगा. ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट इज OB dash. Okay, OB dash. So OB dash is a distance. Positive. Distance of image from ऑप्टिकल सेंटर. ओके, सो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होती है उसको V से डिनोट करते हैं, है ना. यहाँ पर ले लेते हैं अपन. सो दिस O टू दिस डिस्टेंस O to B dash. Okay, O to B dash. So we denote it by V. Now it will be plus V or minus V? It will Positive. be plus V, positive V. Positive. Because this distance we take from O to B dash. So when we move from O to B dash, we will go in the direction of incident light ray, so that we take it as positive. Okay, so the focal length for convex lens is positive plus F, and the distance of object from optical center, this object distance is negative because it is in the opposite direction to the incident light ray. And here the image distance is we denote by V, and we taken it as positive. Why? Because we are, when we go from O to B dash, we go in the direction of incident light ray. Okay, so these are the sign conventions in case of a कॉन्वेक्स लेंस. तो ये एक अपन ने कॉन्वेक्स लेंस के लिए केस डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स टेक वन मोर केस फॉर द कॉनकेव लेंस. एक हम केस डिस्कस कर लेते हैं फॉर कॉनकेव लेंस. ठीक है, तो चलो देखो इसको कॉनकेव में क्या हुआ. प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी. we do not is as a optical center. Now let's take it as F1, or we just discussing a case. So let's take the object is situated between optical center and infinity, somewhere between optical center and infinity. So let's take this is our object. So we denote object as AB. Okay, now let's take the incident light ray. So let's take this one as an incident light ray. Incident light ray हो जाएगी. Now this our concave lens is a diverging lens, so it will diverge the incident light ray. तो इस तरह से diverge कर देगा. Okay, so this is the refracted light ray. Now when we extend it in a backward direction, it will cut the principal axis. और जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वहां पे आपको क्या जाएगा? फोकस. तो इसको डिनोट कर देंगे अपन F1 से. Now let's draw the one more light ray. So let's take, this is the light ray, incident light ray. It is passing from the optical center, so it will go undeviated. So you will get your image here, A dash B dash. Okay, A dash B dash is a
image. Okay, now let's take first point. First is a focal length, this distance. So this focal length will be positive or negative? Focal length क्या होगी? Positive होगी, negative होगी? यहाँ पे बताओ. negative. नेगेटिव होगी फोकल लेंथ. ओके, सो फोकल लेंथ यहाँ पर हम मार्क करेंगे. फोकल लेंथ होगी आपकी OF1. नाउ व्हेन यू मूव फ्रॉम O to F1 you will go in a opposite direction to the incident light ray, so it will be negative, minus F. So minus F. Okay, now after focal length let's take object distance. Object distance So from negative. optical center. Okay, so object distance Negative. from optical center is what? OB. Negative. ये कैसे होगा? नेगेटिव, माइनस U. Okay, so let's mark it also. This distance will be minus U. Okay, now let's take image distance. Image distance, Negative. image distance from optical center. So image distance from optical center is also negative, minus V. और ये क्या है आपका? OB dash. Okay, OB dash. OB dash means this distance, here to here. It will be minus V. Okay, so these are the notations for the concave lens. One more thing is जो बच गई अपनी यहाँ पर, AB जो है उसको H से डिनोट करेंगे. ठीक है, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो नाउ दिस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन ने किससे डिनोट करा? H से. तो कैसे आएगा ये? प्लस H. ठीक है, Positive. ऊपर हाँ इरेक्ट तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या आएगा? प्लस H आएगा. एंड नेक्स्ट थिंग इज A dash B dash. Negative आएगा. हाँ, A dash B dash is the height of image. ओके, हाइट ऑफ इमेज. सो हाइट ऑफ इमेज को हम H डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये किसके आएगी? माइनस में. Yes. माइनस में क्यों आई है? कि इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ जा रही है ना. सो इट वी रिप्रेजेंटेड बाय माइनस H डैश. ऐसे यहाँ पर हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगेन AB से डिनोट करेंगे और क्या आएगा? ये प्लस H. ठीक है, Plus यहाँ पर positive. Yes. प्लस H है ना. और फिर अपन करते हैं Yes, sir. साइज ऑफ इमेज. पॉजिटिव. हाँ, So साइज ऑफ ये भी positive. ये भी इमेज. साइज positive. ऑफ इमेज हमारी क्या है? A डैश B डैश. ये कैसे डिनोट करेंगे अपन? प्लस H डैश. ओके, Yes. सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल लेंस है ना. मोर ओवर अगर आप ध्यान से देखो तो जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये दो पॉइंट ही है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. सारी डिस्टेंसेस हमको कहाँ से लेनी है? ऑप्टिकल सेंटर से लेनी है, पहली बात. और सेकंड थिंग ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज टेकन एज नेगेटिव. ठीक है, ये कुछ बातें हैं. तो लॉजिक हमको पता है. मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि रटो किसी चीज को. लॉजिक आप लोगों को पता है, फिर भी कुछ चीजें आप कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हो जिससे आपका कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाएगा. जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा होगा. ऑलवेज वी प्लेस अवर ऑब्जेक्ट ऑन अ लेफ्ट साइड, सो वी ऑलवेज टेक द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव. तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आप ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव ही होगी. ठीक है, और सेकंड थिंग आप ये याद रख सकते हो कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, ये दो बातें पॉइंट यहाँ से याद रख सकते हो आप. यहाँ अगर आप आगे कॉनकेव में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव ही होगी. ठीक है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव ही लेना है आपको. ठीक है, और फोकल लेंथ जो होगी कॉनकेव लेंस की वो क्या होगी? नेगेटिव होगी. तो ये चीजें रिलेटेड है. ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस. यहाँ से कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ क्वेश्चन बन रहा है? फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों होगी सर? इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन क्या है फोकल लेंथ नेगेटिव? वही अपना जो कॉन्सेप्ट है, मैं अपन ने जो कन्वेंशन अपना बनाया हुआ है कि अगर इफ यू गो अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे देन वी टेक द डिस्टेंस नेगेटिव. नाउ यू कैन सी हियर टू फॉर द कॉनकेव you have to move from O Yes, to sir. F1. So when you move from O to F1, you will go opposite to the direction of the incident light ray. अगर आप O से F1 की तरफ Yes, जाओगे sir. तो आप इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट जाओगे तो नेगेटिव आएगी.
ठीक है, समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक साइन का हिमानी समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. है ना? ओके, Yes, sir. हर्षित, है ना? तो ये हमारे हो गए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बाद नेक्स्ट वी विल सी द फॉर्मूलाज, द फॉर्मूला वी विल यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो फॉर्मूले कौन कौन से हैं इसमें इंपॉर्टेंट? सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है आपका लेंस फॉर्मूला। फर्स्ट जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला इज लेंस फॉर्मूला। तो डेरिवेशन 10th क्लास में है नहीं, है ना? तो हमको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। सो लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो लेंस सर फॉर्मूला वो होता है क्या? इट मिरर इज में अ होता था, लेंस फॉर्मूला होता है क्या? मिरर लेंस में होता फॉर्मूला था इज अ 1 अपॉन फॉर्मूला एफ। व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, image distance from the optical center and object distance from the optical center। ठीक है, होता क्या है लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ओके, and the image distance from the optical center and the object distance from the optical center। इनके बीच की जो रिलेशनशिप देता है उस फॉर्मूले को बोलते हैं अपन लेंस फॉर्मूला। ओके, तो फर्स्ट तो है आपका लेंस फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सेकेंड इज मैग्निफिकेशन, सेकेंड फॉर्मूला इज मैग्निफिकेशन। ओके, सर जैसे मिरर में इसका अपोजिट होता था ना, उसमें 1/f 1/v प्लस हाँ, 1/u ये होता फॉर्मूलेज था। डिराइव होते हैं फॉर्मूलेज, है ना? तो वो तो अभी तो आपको याद करने फॉर्मूले, तो इसलिए आप कह सकते हो कि मिरर फॉर्मूला जो था, मिरर फॉर्मूला था 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v, प्लस साइन था उसमें। ठीक है, सो व्हेन यू मूव टू द हायर क्लासेस देयर इज अ डेरिवेशंस फॉर दीज फॉर्मूलाज, तो वहाँ डेरिवेशन आप देख सकते हो। ठीक है, अभी तो वी हैव ओनली फॉर्मूलाज and we have numerical problems based on these formula। okay, now what is the magnification? So magnification is equal to m is equal to size of image, okay, size of image divide by size of object। ठीक है, this is a formula for magnification, size of image divide by size of object। so it is equal to m is equal to h dash divide by h and is equal to v upon u। ठीक है, ये है लेंस के लिए। वहां पर माइनस v अपॉन u था मिरर में। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला है v अपॉन u। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, m इज इक्वल टू h डैश डिवाइड बाय h इज इक्वल टू v बाय u। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स क्या है? इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर m जो है वो पॉजिटिव है, तो m अगर पॉजिटिव है तो आपकी इमेज कैसी होगी बताओ? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर इफ योर m इज पॉजिटिव देन इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ m इज नेगेटिव, m अगर नेगेटिव होता है तो कैसी होगी? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, ध्यान रहेगा। सर ये आप एक बार समझा दो कि ये कैसे होगा। अभी बताते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अगर इफ m इज लेस देन 1, if m is less than 1 then what happens? the image is कैसी होगी? enlarge होगी या diminished होगी? diminished होगी। if m is less than 1 it will be diminished। okay, now if m is greater than 1 तो कैसी होगी बेटा? enlarge कह सकते हो आप, magnified भी कह सकते हो। तो ये enlarged होगी। ठीक है, अब ये तो पॉइंट्स हो गए। अब हर्षित कह रहा है कि सर इनको एक बार बता दो आप। तो देखो, डिस्कस करके हम बताते हैं आपको। जैसे मान लो कि आपकी जो इमेज है वो डिमिनिस्ड है। इमेज जो है वो क्या है? डिमिनिस्ड। अब डिमिनिस्ड कब होगी? जब साइज ऑफ इमेज जो है वो कम होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। डिमिनिस्ड कब होगी इमेज? जब साइज ऑफ इमेज जो है वो कम होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h डैश डिवाइड बाय h इज लेस देन 1। ठीक है, एंड h डैश डिवाइड बाय h क्या होता है? m होता है, तो m इज लेस देन 1। ठीक है, तो इस तरह से केस आ जाएगा। आगे हम बात करें इनलार्ज्ड की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इनलार्ज की। इनलार्ज के केस में क्या होगा? साइज ऑफ इमेज जो होता है वो ज्यादा होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको अपन इनलार्ज बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, h डैश डिवाइड बाय h इज ग्रेटर देन 1, और h डैश डिवाइड बाय h क्या होता है? m होता है, तो m इज ग्रेटर देन 1।
ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि भाई m अगर आपका लेस देन 1 है तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। अगर आपका m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज क्या होगी, इनलार्ज होगी। अब बात हो जाती है कि m की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो एक छोटा सा केस मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस लिया और कॉन्वेक्स लेंस के बाद यहाँ 2f पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है। 2f पर आपका ऑब्जेक्ट था, आपने यहाँ से आपने इमेज फॉर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कहाँ से जाएगा आपका फर्स्ट जो रिफ्लेक्टेड रे इट विल पास थ्रू द फोकस, तो फोकस से आपने पास कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही एक और रे पास करी, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से पास करी। तो ऐसे आपका यहाँ पर ए बी तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और ए डैश बी डैश जो है आपका, a dash b dash is a image. Okay, now you can see here that मैंने ऐसे रफ डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए, है ना। now you can see here that this is inverted, आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा बन रहा है ऑब्जेक्ट का। यानी कि अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखोगे कि अगर हम लिखें साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज तो क्या आ रहा है, माइनस एच डैश आ रहा है, उल्टी बन रही है ना, तो माइनस में लिखूंगा ना इसको, तो मैं माइनस एच डैश, और ये क्या होगा, प्लस एच होगा, तो डिवाइड बाय ये क्या आएगा, प्लस का एच आएगा। तो आप यहाँ से देखो अगर मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रही है, इफ योर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, तो कैसी बन रही है इमेज आपकी, क्या बन रही है, रियल। तो एक तो इन्वर्टेड मतलब उल्टी तो है ही सही, ठीक है, उल्टी तो है ही, तो इन्वर्टेड हो गई। और दीज रेज आर एक्चुअली मीटिंग इट एट ईच अदर, तो इस वजह से क्या होगी, रियल होगी। तो कैसी इमेज बन गई आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड बन गई। इसी तरह से कोई सा एक केस देख लो आप, मान लो इसका कॉनकेव लेंस का केस बना देते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस का केस है जिसमें आपका मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, सो दीज आर द इंसिडेंट लाइट रेज। इंसिडेंट लाइट रे है तो ये आपका ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई दोनों। अब रिफ्लेक्टेड रेज को आप रिट्रेस कर लो, तो रिट्रेस जहाँ पर कटेगी ये यहाँ पर आपका फोकस आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे। अब यहाँ पर भी जब आप एम निकालोगे, ठीक है, तो आपको पता है कि अभी कॉनकेव लेंस के केसेस आपने पढ़े हुए हैं कि यहाँ पर जो इमेज बनती है, इमेज का नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब ये है कि साइज ऑफ जो इमेज आएगा वो भी प्लस आएगा और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो ये सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। और बताओ, आया समझ में, ठीक है, Yes, sir. यस क्लियर सर, है आ ना, गया सर। ओके। अब एक फॉर्मूला नया है यहाँ पर, और वो फॉर्मूला है लेंस की पावर का, लेंस पावर ऑफ मेकर लेंस, फार्मूला। ठीक है। तो अब पावर ऑफ लेंस डिस्कस करते हैं अपन। थर्ड फॉर्मूला जो है, थर्ड फॉर्मूला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पावर ऑफ लेंस। तो ये इम्पोर्टेंट, वैसे तो ये पूरा ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जिसको लेंस यहाँ पर समझ में आया है उसको ह्यूमन आई काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जिसको यहाँ पर ये अच्छे से सर समझ मेरा में आ रहा है, न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल, हाँ बेटा बोलो क्या बोल रहे हो। सर आज अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ न्यूमेरिकल करेंगे, मैं 2 सेशन लूंगा, न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद, है ना। ओके सर। तो पावर ऑफ लेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल पी से, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन होती है कि व्हाट इज अ पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इट इज अ या इट इज एन एबिलिटी, ठीक है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू converge or diverge incident light ray, okay, this is a definition। कोई भी लेंस जो भी इंसिडेंट लाइट रे हो रही है उसके ऊपर जो भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, कोई भी लेंस इंसिडेंट लाइट रे को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है वो उसकी पावर कहलाती है, ठीक है। because you know that the convex lens is a converging lens,
एंड कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। जो अपने केस है उसमें क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो कहीं पर भी अगर आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे तो आपका पर्पस यही होगा कि भाई इंसिडेंट लाइट रे को आप कन्वर्ज करना चाहोगे, और कहीं पर भी आप अगर कॉनकेव लेंस यूज करते हो तो आपका पर्पस यही होगा कि भाई आप इंसिडेंट लाइट रे को क्या करना चाहते हो, डाइवर्ज करना चाहते हो। तो कोई भी लेंस जो है इंसिडेंट लाइट रे को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। ठीक है, और वैसे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप दैट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिनोट इट्स पावर। ठीक है, फोकल लेंथ का अपोजिट जो होता है वो लेंस की पावर होती है, यानी P इज इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अच्छा आप में से बता दो, ये तो पावर का फॉर्मूला हो गया। आप में से ये कौन बता सकता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, पावर की यूनिट क्या होगी? सर वॉट। नहीं, यहाँ फॉर्मूला देख के बताओ क्या यूनिट होगी। सर मीटर होगी। ऑफ लेंस है ना, ये तो कई बच्चे वॉट लिख Yes, देते हैं। sir. अभी 10th क्लास का मैंने पेपर लिया था, आपके पहले वाले जो बैच थे उन्होंने वॉट लिख दिया। तो आप यहाँ देखो, जो फोकल लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ से आपकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, 1/मीटर। ओके, मीटर आएगी है। सो एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज होती है डायोप्टर। ठीक है, एसआई यूनिट जो होती है पावर ऑफ लेंस की वो होती है डायोप्टर। और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू, 1 डायोप्टर को डी से, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1/मीटर। 1/मीटर, 1/मीटर को बोलते हैं 1 डायोप्टर। ठीक है, ध्यान सर रखिएगा। आप एक और बार समझा दोगे? एक और बार बता देते हैं। देखो, पावर ऑफ, सबसे पहली बात तो डेफिनेशन पावर ऑफ लेंस होता क्या है। सो व्हाट इज अ पावर ऑफ लेंस? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट लाइट रे। Okay, so this is the definition of power of lens. Now second thing is the reciprocal of a focal length denotes the power of a lens। यानी जो फॉर्मूला होता है इसका पावर ऑफ लेंस का वो होता है 1/फोकल लेंथ। ये देखो 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल उल्टा 1/फोकल लेंथ। ठीक है, अब यहाँ से अगर यूनिट निकाली जाए पावर ऑफ लेंस की तो फोकल लेंथ की यूनिट कहते हैं मीटर। ऐसा यूनिट अगर देखें लेंथ की तो क्या होती है, मीटर होती है। तो फोकल लेंथ यूनिट क्या होगी, मीटर। तो 1/मीटर आ गया। तो यहाँ से पावर ऑफ लेंस जो है उसकी यूनिट क्या है, 1/मीटर। ठीक है, 1/मीटर को बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। और डायोप्टर को किससे डिनोट सर किया जाता है? सर कौन सा डायोप्टर या डायोप्टर? देखो ना, स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पे, डायोप्टर, DIOPTER, डायोप्टर। ठीक है, ओके और सर। डायोप्टर का डिनोट करते हैं डी से। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1/मीटर। 1 डायोप्टर यानी 1/मीटर जो है उसको क्या बोलते हैं, 1 डायोप्टर कहते हैं। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। ओके, और डायोप्टर, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/मीटर होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई। पर थर्ड पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब आप न्यूमेरिकल करोगे, so in numerical the focal length is given in सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जो फोकल लेंथ है वो आपको किसमें मिलेगी, सेंटीमीटर में मिलेगी। और आपसे जो आंसर पूछेंगे वो पावर ऑफ लेंस का वो पूछेंगे डायोप्टर में। तो आपको फॉर्मूला लगाना है 100 डिवाइड बाय एफ सेंटीमीटर। एफ किस में रखा है आपने, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा या पावर ऑफ लेंस जो निकल के आएगी, पावर ऑफ लेंस किस में आएगी, डायोप्टर में आएगी। ठीक है, तो और ये ध्यान रखना है, ये सब हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, थिन लेंसेज के लिए। थिक लेंसेज का अलग अलग स्टडी है ये। ऑल दीज फॉर्मूलाज वी अप्लाई फॉर द थिन लेंसेज। ठीक है, तो
ध्यान रखना कि फोकल लेंथ आपको अगर किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, तो आपको फॉर्मूला जो लगाना है पावर का, पावर ऑफ लेंस का, तो वो होता है P = 100 डिवाइड बाय F, और F किस में है आपका सेंटीमीटर में। तो जो सॉल्यूशन करके आएगा पावर आपके पास आएगी वो किस में आएगी, डायोप्टर में आएगी। ठीक है, एक तो ये बात हुई। नेक्स्ट पॉइंट Yes, इज sir. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मान लो एक से ज्यादा लेंस है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनका एल्जेब्रिक सम, P = क्या कर दोगे, P1 + P2 + P3, ठीक है, ऐसे करके आपको क्या करना है, सारे लेंसेज की जो सर पावर तो है, इनकी पावर ऐड करनी है, पावर ऐड हाँ, करनी है पर पीछे। एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। ऐसे ही मान लो कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, तो पावर भी उसकी नेगेटिव होगी। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर रखना है, ठीक है। और इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। मान लो पहला वाला, फर्स्ट वाला आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव में रखोगे पावर, दूसरा वाला कॉनकेव है तो नेगेटिव में रखोगे, तीसरा वाला भी कॉनकेव है तो उसको नेगेटिव में रखोगे। तो इस तरह से आप सॉल्व करना, और सॉल्व करके जो रिजल्टेंट पावर आ रही है, अगर रिजल्टेंट पावर आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो जो कॉम्बिनेशन होगा, द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। आप एल्जेब्रिक सम करना, एल्जेब्रिक सम करके जो रिजल्टेंट पावर आ रही है, इफ द रिजल्टेंट पावर इज पॉजिटिव, then your combination will behave as the converging lens. Converging lens means convex lens. ऐसे ही अगर आपकी जो कॉम्बिनेशन आपने निकाला और वो क्या आ रहा है, नेगेटिव, रिजल्टेंट पावर आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव, तो जो आपका कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। सर सो दीज आर द फॉर्मूलाज